Good morning, students. In the next part of the same chapter, lines and angles. Lines and angles. This is last video in the sequence of the chapter. Here I am going to do few questions of the exercise 6.3, in which I have done only two. I have left four questions. So let us try to do few more. Then I will give you some work. First, as I had said earlier, that you may be asked in general a question that in triangle ABC, BO and CO are the bisectors of angle B and C. Given that bisectors of angle B and angle C of triangle ABC meet at O, prove that angle BOC is 90 degree plus half angle A. 90 degree plus half angle A. In order to prove, we are doing some angle sum properties in triangle ABC. What is angle A plus B plus C? Here B plus C means the whole angle B and whole angle C is 180 degree. So what about their halves? Half of angle A plus half of angle B plus half of angle C is half of 180 degree, that is 90 degree. Is not it? So let it be this one. Clear? Now in triangle OBC, again use angle sum property. Angle BOC plus OBC plus OCB is 180, you know. And what is here? BOC is BOC. Okay. OBC is, since BO is bisector of angle B, so OBC is half of angle B. Again I am telling you that angle B is the whole angle B, and OCB is half angle C. And you should write angle ABC here. In place of B you should write angle ABC, in place of C you should write angle ACB. Is what? 180 degree. Clear hai? So better you can say half of angle A plus half of angle B plus half of angle C is 190 degree. So from here we can say that half of angle B plus half of angle C is 90 degree minus half of angle A. Let this one be 1. And from here, what is half of angle B plus half of angle C? It is 180 degree minus BOC. And this is true. So what is by 1 and 2? ये जो half of angle B plus half of angle C है वो 90 minus half angle A है, और इस केस में 2 में 180 minus BOC है. So can I say that it is 90 minus half angle A must be equal to 180 degree minus BOC. Okay. अब क्या करो, आप BOC को इधर ट्रांसपोज कर लो, इन सबको इधर ट्रांसपोज कर लो. तो in that way you are going to get BOC is equal to 180 degree, 90 इधर आया minus 90, minus half angle A इधर आया तो plus half angle A, and that is 180 minus 90 is 90 degree plus half angle A, and it is proved. Is not it? हो गया. इसके बाद आफ्टर दैट एक्सटीरियर एंगल वाली पार्ट हम लोग कर लेते हैं. इन ट्रायंगल ABC आई हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड द साइड AB एंड AC. AB एंड AC को हमने एक्सटेंड कर दिया. लेट इट बी अप टू एक्सटेंड
यहाँ पर हमने कुछ नाम दे दिया, ए बी सी के अलावा दे दिया क्या, ई दे दिया, इधर एफ दे दिया. If the bisector of exterior angle, this is interior angle B. Now I am going to bisect exterior angle B. Yani this angle is equal to this angle. And exterior angle C. This angle is equal to this angle. Meet at O. Meet at O. In triangle ABC, bisectors of exterior angles B and C meet at O. Prove करो that BOC, this angle BOC must be equal to 90 degree minus half angle A. अब ऑब्जेक्टिव में जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, इस क्वेश्चन में अगर ये एंगल दिया हो तो ये आसानी से निकाल लेंगे. मान लो यहाँ 120 दिया हो तो ये 60 हो जाएगा, या यहाँ 30 दिया है तो उसका डबल, सॉरी 60 हो जाएगा, 90 प्लस है ना. अगर मान लो यहाँ पर ये एंगल निकालना हो, ये 30 दिया हुआ है तो 90 प्लस हाफ एंगल 30, 90 प्लस 15 दैट इज 105. उसी तरह ये दिया हुआ है तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आइदर दिस और दिस. इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, हम दूसरा निकाल सकते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको यूज़ करना है. उसी तरह इसमें भी, नेक्स्ट वाले में भी. चलिए यहाँ प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा दिमाग हमें. ओके, इन ट्रायंगल OBC एंगल BOC प्लस OBC प्लस OCB इज 180 डिग्री. करेक्ट है. नाउ BOC प्लस ये OBC क्या है, ये OBC हाफ एंगल EBC है, हाफ एंगल EBC. ये भी हाफ एंगल FCB है. चलिए तो क्या क्या कर रहे हो सर आप भी, कुछ तो कर ही रहे हैं. नाउ BOC हाफ, EBC और ABC मिलके 180 होता है, तो EBC के बदले में 180 डिग्री माइनस ABC लिख सकते हैं बाय लीनियर पेयर. उसी तरह FCB को 180 डिग्री माइनस ACB लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. एम आई राइट? ध्यान से समझना, यहाँ पर आप कंसेप्ट इसको यूज कर सकते हो कि ABC प्लस EBC इक्वल टू 180 डिग्री. एक कंसेप्ट ये हुआ. उसी तरह ACB प्लस FCB ये भी 180 डिग्री हुआ. ये दो कंसेप्ट हमने इसमें यूज़ किया है, ठीक है ना. नाउ एंगल BOC प्लस हाफ ऑफ 180 इज 90 एंड माइनस हाफ ऑफ ABC. सिंपली लिख डालो. अगेन हाफ ऑफ 180 इज 90 माइनस हाफ ऑफ ACB लिख दिया एंड दिस इज 180. ओके सर. BOC और ये दोनों 90 90 और ये 180 कट गया इज इक्वल टू, कैन आई राइट, दोनों को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, हाफ ऑफ ABC प्लस हाफ ऑफ ACB. माइनस थे तो प्लस हो गए. पर्पस तो हमारा दूसरा है, पर्पस तो हमें 90 माइनस एंगल प्रूफ करना है. यहाँ A आया ही नहीं, कोई बात नहीं है, बताओ. ABC प्लस ACB. अब देखिए हम क्या जानते हैं कि जो एंगल A और B और C है ये तीनों मिलके 180 होता है ट्रायंगल ABC में. तो इसमें से दो एंगल जो है एंगल B प्लस एंगल C वो क्या लिखा जाएगा, 180 माइनस एंगल A. सो इन प्लेस ऑफ एंगल ABC एंड ACB दैट इज B प्लस C, कैन आई राइट एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल A लिख सकते हैं हम लोग. अब फिर ब्रैकेट आप खोल लीजिए, हाफ ऑफ 180 इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A. सो क्या प्रूव कर दिया हमने, दैट एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 minus half of angle A when BO and CO are the bisectors of angle exterior angle B and exterior angle C respectively. So these are the two questions. This question is given in the example of NCERT.
This is not given, I have done it. Now come to the questions. I am going to take 2 or 3 questions from it. Okay. So let us try to find few questions. I am going to take the fifth one. What is fifth? Fifth question is in figure 6.43. This is the figure. Okay. If PQ is perpendicular to PS, PQ is perpendicular to PS, ये perpendicular है. PQ is parallel to ST. These two are perpendicular, parallel. Okay. So we are going to draw the figure first. Question number 5. There is a line, there is another line. This is S, this is P, and this is Q. This is going to be perpendicular. These two are 90 degree. QS joined है. ये यहाँ पर एक एंगल आ गया है R, taken as T. This angle is given to be 65 degree. Okay. This is given to be 28 degree. And ये X, ये Y आपको निकालने हैं. ठीक है ना. PS is perpendicular to PQ, और PQ is perpendicular to PS, and PQ is parallel to SR. Angle QRT is 65 degree. Angle SQR equal to 28 degree. Find X and Y. Okay, find X and Y. How can you do it? Using properties of triangle. Okay. Using property of triangle. देखो, चूंकि since PQ is parallel to ST and this is a transversal, that the whole angle PQR must be equal to QRT, alternate interior angle. Since PQ is parallel to SR or ST, and QR is a transversal, so angle PQR must be equal to QRT, Y alternate interior angle, and PQR as a whole you can say X plus 28, or QRT is given to be 65. So what angle is X? X is nothing but 65 minus 28. You will find it is 37 degree. X की वैल्यू क्या हो गया? 37 डिग्री. अब Y आप आराम से निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से. इन राइट ट्रायंगल PQS, angle P plus PQS plus PSQ must be 180 degree. P is 90. PQS is X and this is Y. X अभी हमने निकाला है 90 plus 37 I think. So what is 180? And what is Y? 180 minus 90 plus 37, 127. 90 plus 37 is 127, and that is 53 degree. You will get the answer. Am I clear? इसी में ये फिफ्थ क्वेश्चन था. फोर्थ क्वेश्चन को भी आपको बता ही दें, है ना. फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन ये है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिगर ये है, दिस वन. 3 of angles given in this figure and you may be required to find this angle. ठीक है, तो हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आपको बता देंगे कि क्वेश्चन क्या है. फिगर में हमने ये ड्रा किया है, एक लाइन ऐसे, थोड़ा छोटा ही सही. लेवलिंग क्या है? P है, Q है, PQ and RS, and this
point of intersection is T. This angle is 95 degree, this angle is 40 degree, and this angle is 75 degree. Question is, in this figure, PQ and RS intersect at T such that PRT equal to 40 degree, PRT equal to 40 degree, RPT equal to 95 degree, RPT equal to 95 degree, and TSQ is 75 degree. Find SQT. Find SQT. Now, how can you find it? देखो, हम इसको दो तरीके से तो कम से कम कर ही सकते हैं. पहले हमने इसको निकाल लिया एंगल सम प्रॉपर्टी से. इन ट्रायंगल PRT, एंगल P प्लस R प्लस T मस्ट बी 180. यहाँ T पर दो एंगल, इधर भी. सो 95 प्लस 40 प्लस PTR मैं लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 180 डिग्री. सो PTR क्या हो गया बेटा? 180 माइनस 135, दैट इज 45 डिग्री. तो PTR जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से STR हो जाएगा. किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से STR, यानी STR भी हो गया हमारा 45 डिग्री. ये एंगल भी क्या मिल गया? 45 डिग्री. विद द हेल्प ऑफ दिस, इफ यू गो फॉर 45 हो गया ना STR, ये वाली एंगल क्या हो गया? 45. इन ट्रायंगल SQT, एंगल S प्लस एंगल Q प्लस एंगल STR 180 डिग्री. S इज गिवन 75 डिग्री, Q अभी हमने निकाला 45 डिग्री. तो व्हाट एंगल इज STR? दैट STR इक्वल टू 180 minus 120, that is 60 degree. Clear? The value of STR is 60 degree. अब कहोगे सर इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें ये निकालना है ना, ये तो हम इसको x मान लेते हैं. अच्छा, इस फिगर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ. तो क्या आप ये एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो? इन ट्रायंगल PRT ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होना है. सो ये एंगल निकलेगा 95 प्लस 40, दैट इज 135. ओके, अब आप इधर के फिगर को भूल जाओ तो यही एंगल इस ट्रायंगल का भी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. तो ये जो 135 है दैट मस्ट बी इक्वल टू 75 प्लस x. 135 exterior angle is equal to sum of its interior opposite angle. 135 is equal to 75 plus x. So what is x? X is equal to 135 minus 75. Is it clear? तो ये दूसरे तरीके का है, हो गया सोल्यूशन. उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? वो पार्ट भी आप यूज कर सकते हो. ये मैं आपको वहां पर सोल्यूशन दे रहा हूं. इन ट्रायंगल PRT, exterior angle PTS is equal to P plus R, that is 95 plus 40 and is equal to 135. In triangle STQ, again exterior angle, यहां भी हम PTS कह सकते हैं, is equal to here S plus R, S plus Q. Now PTS is just, we have calculated 135. S is given 75 और Q हमें निकालना है. तो what is Q? Angle Q is 135 minus 75 is equal to 60 degree. So this is the second method, this is the first one. फर्स्ट वन ज़्यादा दिमाग में आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल बहुत कम दिमाग में आता है तो नहीं कर सकते. लेकिन आपको अगर सारे प्रॉपर्टी ठीक से ध्यान से रहेंगे तो आप आसानी से छोटे समय में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं. सो दिस इज द फोर्थ वन. नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. हियर आई हैव रिटन द क्वेश्चन. हियर this is the question of next problem. In the figure I have not drawn. In the figure
PQR. PQR. QR, side QR of PQR is produced up to a point S. QR is produced up to a point S. If the bisectors of angle PQR, this angle, and PRS, this angle, इन दोनों के बाइसेक्टर अगर कहीं T पे मीट करते हैं, इस जगह पे, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, देन प्रूव दैट QTR, ये वाली एंगल हाफ ऑफ QPR, इसके हाफ होगी, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। अगेन यहां पर हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। किस किस में? इन ट्रायंगल PQR एज वेल एज इन ट्रायंगल QTR। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्रायंगल PQR, एक्सटीरियर एंगल PRS, ये पूरा का पूरा एंगल अपने दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा, PQR प्लस QPR के बराबर होगा। इन ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। और उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल दो ही होते हैं, एक तो उसके बगल वाला होता है अंदर में, और बाकी दो अपोजिट हो जाते हैं। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल QTR, अब इस ट्रायंगल में ये उसका एक्सटीरियर हुआ, साइड प्रोड्यूस है, ये उसका एक्सटीरियर हुआ, दैट इज TRS। एक्सटीरियर एंगल TRS इज इक्वल टू, इसका एडजेसेंट, अब ये पूरा होल हुआ तो ये दोनों हो गए अपोजिट, एंगल T एज वेल एज एंगल, सो एंगल QTR प्लस TQR। This is second. Reason is same. Do means exterior angle of a triangle is equal to sum of its interior opposite angle. Now, what is the relation between TRS and QRS? ये लाइन क्या है? ये जो है एंगल PQS का बाइसेक्टर है, मीन्स TRS is half of PRS. TRS is, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं? डबल कर देते हैं, twice TRS इक्वल टू twice QTR ट्वाइस TQR। क्या किया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई 2। तो व्हाट इज 2 TRS? TRS चूंकि PRS का हाफ है तो TRS का डबल PRS। QTR का कोई हमें जानकारी नहीं है, नो नॉलेज। नाउ अगेन दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, सो TQR मस्ट बी हाफ ऑफ PQR, सो डबल ऑफ TQR इज PQR। यहां पर आप लिखोगे, रीजन दे दोगे, क्या दे दोगे? सिंस RT बाइसेक्ट्स एंगल PRS, देयरफॉर PRT या TRS दोनों के दोनों हाफ ऑफ PRS होंगे। उसी तरह QT बाइसेक्ट्स एंगल PQR, सो PQT TQR पूरे PQR के हाफ होगा। इसी कंसेप्ट को हमने यहां यूज कर लिया और इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में PRS इन दोनों के बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 में PRS इन दोनों के बराबर है। तो बाय 1 and 2 व्हाट वी गेट? जस्ट राइट डाउन ट्वाइस QTR प्लस PQR मस्ट बी इक्वल टू PQR प्लस QPR, PQR प्लस QPR। ओके, PQR कैंसिल, 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो QTR is half angle QPR, and this is the last question of the exercise. Is it clear?
I hope so. So this is the fourth video of the chapter lines and angles. I am taking some more question from reference book. So I am taking one more question from reference book, that L and M, these two are parallel lines, and AP and BQ are the bisectors of alternate interior angles. Okay, bisectors AP and BQ of the alternate interior angles are, this is given to be parallel. ये दोनों parallel हैं, sorry, L and M are not parallel. These two bisectors are parallel, then you have to prove that L is parallel to M. और इसका कन्वर्स भी है कि if L is parallel to N, then prove that the bisectors of alternate interior angles are also parallel. दोनों एक दूसरे का. यहाँ फिलहाल क्वेश्चन क्या है, bisector AP and BQ of alternate interior angles are parallel, means here given that AP is parallel to BQ, where AP and BQ are bisectors of alternate interior angles. और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव कर देना है कि L M के पैरेलल है. ओके, गिवन हो गया, सिंस AP इज पैरेलल टू BQ, अगर ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, जो P ये स्मॉल p है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, AB इज ट्रांसवर्सल एंड AB इज transversal, then can I say that PAB, angle PAB must be equal to ABP, ABQ sorry. लाइंस पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है. अच्छा, यहाँ पर हम लोग कुछ लेबलिंग भी कर लें. A है, P है, B है, लेट इट बी RS TU, और यहाँ भी एक नाम दे दो MN, आसानी होगी एंगल्स को लिखने के लिए. नाउ ये दोनों बराबर हैं तो इनका डबल भी बराबर होगा. ट्वाइस PAB इज इक्वल टू ट्वाइस ABQ. अच्छा, इसका डबल क्या होगा, चूंकि ये बाइसेक्टर है तो इस एंगल का डबल RAB होगा. होगा या नहीं होगा? ये भी बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, तो इसका डबल ये पूरा होगा. यानी ABQ के जगह हम ABU लिख सकते हैं, मतलब ABQ के डबल के जगह ABU लिख सकते हैं. What we got, that angle RAB is equal to ABU, मतलब these two angles are equal, and which are alternate interior angles for the lines L and M. L and M के लिए ये इंटरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, तो क्या कहेंगे, L मस्ट बी पैरेलल टू M होगा या नहीं होगा. और इसी का कन्वर्स अगर आप चलो, ये बाइसेक्टर दिया हुआ रहेगा और ये पैरेलल दिया हुआ है. ओके, जब ये पैरेलल दिया हुआ रहेगा तो हम इसको कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और फिर हम कहेंगे कि इसका हाफ इक्वल होगा, इसका हाफ इक्वल होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होगा. और जब ये दोनों इक्वल होगा तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइन AP एंड BQ. So we can say that AP is parallel to BQ. Is it clear? आपको इसमें एक और क्वेश्चन दे सकता है कि एक ही तरफ के को इंटीरियर एंगल्स, मान लो ये लाइंस पैरेलल दिया हुआ है और ये ट्रांसवर्सल है, प्रूव करेगा कि ये दो इंटीरियर एंगल्स के एक तरफ के जो हैं बाइसेक्टर हैं वो 90 डिग्री पे लाई करेंगे. वेरी गुड. You know that these plus this is 180 co-interior angles. Since lines are parallel, these two are 180. अब अगर ये 180 है तो इनका हाफ मिलके क्या होगा, 90. किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल 90 है तो तीसरा 90 होगा ही होगा, प्रूव कर सकते हो. उसी तरह अगर ये बाइसेक्टर देके कह दी कि ये 90 है, प्रूव करो लाइन पैरेलल है, तो आप इस 90 की हेल्प से कह दोगे कि सम ऑफ दीज टू इज 90, तो सम ऑफ देयर डबल इज ऑल्सो 180, डबल ऑफ 90. तो ये दोनों का सम अगर 180 हो गया तो लाइन्स आर पैरेलल. इसको मिला दिया कि इधर का बाइसेक्टर, इधर का बाइसेक्टर, ये दोनों तरफ का चारों दे दिया, कहा कि बताओ कि एक रेक्टेंगल है. तो पहले हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया. और किसी भी एंगल को आइदर दिस वन और दिस वन और दिस वन, बेटर है ये 90 दिखा देंगे किसी भी पैरेललोग्राम में. तो ये जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाएगा.
अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ा है तो अभी तक ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, मतलब वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस टू। और क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे आफ्टर ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल मीन्स इन दैट पार्ट वी हैव टू प्रूव द congruence ऑफ ट्रायंगल। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन that AB a line parallel to CD in such that there is a figure like that, this one, this is A, B, D, C. AB is parallel to CD and this angle is given to be 130 degree and this angle is given to be 170 degree. You are required to find that angle, let it be E. यहाँ पर E दिया हुआ है, इस E को निकालिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा, ये गिवन है एंड एंगल ABE is 130 डिग्री, CDE is 170 डिग्री, फाइंड एंगल BED। इसके लिए आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन एक करना पड़ेगा। E के थ्रू एक लाइन आप पैरेलल ड्रॉ कर दो, ड्रॉ, लेट इट बी PQ, PQ पैरेलल टू आइदर AB और CD थ्रू व्हाट, E। यहाँ P लिख लो, इधर कहीं Q लिख लो, ध्यान से, जिसमें वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से पॉइंट क्या है, बाद में स्नैपशॉट से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और अब आप इसको x मान लो और इसको y मान लो। अब देखिए, सिंस AB इज पैरेलल टू PQ, डज इट मीन दैट सम ऑफ दीज टू एंगल इज 180 डिग्री? एंगल ABE प्लस BEP इक्वल टू 180 डिग्री y, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। 130 plus y is 180 degree. So what is y? 50 degree. In the same way, if CD is parallel to PQ, ये तो कंस्ट्रक्शन से है, तो अगेन वी कैन से दैट CDE, सॉरी, if CD is parallel to PQ, y 50 निकल गया, CD is parallel to PQ, एंगल CDE, ये एंगल एंड प्लस ये एंगल PED, ये भी क्या होना है 180 डिग्री। क्यों? सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पर CD दिया हुआ 170 डिग्री, PED को हमने x लिया हुआ है, तो व्हाट एंगल इज x? 180 माइनस 70, दैट इज 10 डिग्री ओनली। सो BED जो कि हमारा x प्लस वाई है, पूरा हमने क्या लिया हुआ है, x प्लस वाई, यानी 10 प्लस 50 इज 60 डिग्री। क्या हो जाएगा ये? 60 डिग्री। वैसे भी एक और पार्ट हम लोग कर सकते हैं इसको, जैसे हमने ये लाइन पैरेलल खींचा ना, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ये एंगल क्या हो गया, अल्टरनेटेड एंगल 130 डिग्री। उसी तरह ये एंगल क्या हो गया, 170 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस, ये तीनों एंगल एक पॉइंट के अबाउट हैं, चारों तरफ से, तीनों तरफ से मैंने घिरा हुआ है। तो एंगल BEQ प्लस DEQ प्लस BEQ मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री, जिसमें से एक नहीं मालूम, बाकी दोनों मालूम है। 170 प्लस 130 इज 300 एंड 300 प्लस दिस इज 360। सो व्हाट इज दिस वन? 60 डिग्री। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? सो ये आपका क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन आपको मैं दूं, कहीं पर देखता हूं बना के, ठीक है ना। हियर यू सी देयर इज ए क्वेश्चन दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सम एंगल्स आर गिवन। ठीक उसी तरह जो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन बताया, ठीक उसी तरह का ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेंगे, तो ये 40, तो ये भी 40, ये 62, तो ये भी 62। इसका मतलब ये पूरा जो एंगल है 62 प्लस 40 102 हो गया। तो 3x प्लस 10 इज 102, 3x प्लस 2 10 इज 102। सो व्हाट इज 3x?
3x is 92. 40 and 62 ही दिया हुआ है ना, 40 and 62 102, 3x plus 10 is 92. So with the help of this you can find the value of x. X is 92 by 3. It is some rational part, okay, doesn't matter. So you can find that. और ठीक इसका क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करूं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x AB must be parallel to CD. AB must be parallel to CD. तो AB must be parallel to CD, इसके लिए हमने क्या किया कि एक लाइन इसके पैरेलल खींच लिया तो ये इसके बराबर होगा। अगर पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल होने हैं तो इस लाइन के ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, तो हमने पैरेलल खींच दिया, ट्राई किया, तो ये और ये आपस में मिल जाएंगे, तो वही सेम वैल्यू कि x के 92/3 होने से लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इन दिस गिवन सिचुएशन, नथिंग इन डिफरेंट केसेस. ओके, वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, just that is given, this one a figure, this one, and this is a figure. This angle is given to be 50 degree, another यहाँ से गया और फिर ये एक लाइन गया इधर. This is P, this is Q, C and D, this is A and this is B. ये दिया हुआ है 160 डिग्री, ये दिया हुआ है 20 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री. ये नोटेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना. क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD. लेबलिंग दिया हुआ है. प्रूव दैट, सिंपल, एंगल्स आर गिवन 20 डिग्री, 30 डिग्री, 160 डिग्री एंड 50 डिग्री. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट AB is parallel to CD. Okay. So AB is parallel to CD. First we try to prove that AB is parallel to PQ. Can I prove? Here ABQ plus PQB is what? 160 plus 20, 180 degree. Co-interior angle equal है. Co-interior angle का सम 180 है, सॉरी. तो सिंपल कहेंगे कि AB is parallel to PQ. अगेन अब PQ और CD को पैरेलल दिखा देते हैं. एंगल PQC जो कि 20 प्लस 30 है, यानी कि 50 हो गया, और 50 QCD भी है. PC क्या है? QCD भी है. अब देखिए PQC इक्वल टू QCD, PQC इक्वल टू QCD. ये क्या है? विच आर alternate interior angles for what? PQ and CD. So PQ must be parallel to CD. Here AB be parallel to PQ, PQ be parallel to CD. यानी two different lines AB and CD are parallel to same line PQ. क्या कहोगे आप? AB and CD are both parallel to PQ. तो ये आपस में भी पैरेलल होंगे. होंगे कि नहीं होंगे? होने चाहिए. तो दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? सॉरी, यू कैन फाइंड, यू कैन रिप्रेजेंट दैट AB इज पैरेलल टू CD. अगर मान लो इन दोनों को अननोन कर दिया, x और y कर दिया, और कह दिया कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो इसके पैरेलल से ये एंगल निकल आ गया, 160 प्लस x इज 180, सो 20 निकल आएगा, और फिर x, ये 20 प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 50, तो ये भी एंगल हम निकाल सकते हैं. तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फ्यू क्वेश्चंस. टुडे आई ट्राई टू डू सम प्रॉब्लम्स इन, एंड देयर आर वेरियस क्वेश्चन इन रेफरेंस बुक. If you go through, you can find, and if you do all these things, then there will be a doubt. जब तक आप बनाओगे नहीं, you will not going to get any doubt. Doubt होगा, आपसे प्रॉब्लम मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेंगे, और तब आप पूछोगे भी कि चलो सर पूछ लेते हैं, तो हम पूछ लेंगे, है कि नहीं. So I am going to give you some, जैसे क्वेश्चन ये हुआ, ऐसे स्टार बना दिया, इसका नाम दे दिया ABCDE. आप इन पांचों एंगल का सम निकाल के बताओ.
find the angle of these all 5 angles, sum of A plus B plus C plus D plus E. ठीक है। फिर कल एक और हमने बताया था कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, यानी इसको जैसे ए बी सी दिया हुआ है और यहाँ पर हमने लिख दिया पी क्यू आर, यू हैव टू रिक्वायर टू प्रूव दैट एंगल बी ए क्यू प्लस ए बी सी बी आर प्लस ए सी पी बी 360 डिग्री. Sum of exterior angles is always 360 degree in any polygon, whether it is triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, whatever it is. तो ये भी आप प्रूव करके देखो. ठीक है सर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस